परमेश्वर 7 कलीसिया को लिखते हैं। ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। अरे ये जो वचन हम सुने कि परमेश्वर अपने हाथों में 7 तारे धारण किए हैं। ଆଉ ସପ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। अरे ये जो तारे का मतलब है कलीसिया की दूतों को समझाती है। କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ମାନେ ହେଲେ? अरे किस तरह कलीसिया का दूत बने? କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସାତ ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ। 7 कलीसिया को यूहन्ना के जरिए लिखा गया है, चिट्ठी गया है। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା हम देख पाते हैं ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବାମ ହସ୍ତ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ରହିଅଛି? अरे ये दाहिने हाथ और बाएं हाथ के अंदर फर्क क्या है? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ବିଷୟ ଯାହାକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନହୀନ ଥିଲି, ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ଆଉ ମତେ ତମେ ସୁସ୍ଥ ଦେଲ। କିନ୍ତୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉ? ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯାଉ। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के जरिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो कह रहे थे कि उनके जो दाहिने ओर थे और उन्हीं लोगों को कह रहे थे कि जब मैंने कंगाल था, मैं जब कारागार में था, जब मैंने बंदी अवस्था में था, तब मुझे तुम्हें छुड़ाया, तुम लोग छुड़ाया। और जो बाएं की ओर थे उन्हीं लोगों को कह रहा है कि तुम्हें जलते हुए आग में डाला दिया जाएगा। ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। अरे दाहिने ओर जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो बुलाहट के साथ साथ थे और बुलाए गए व्यक्ति थे। ଏ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଅଛି? इस जगह पर किसी को बुलाया गया है? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ। और परमेश्वर को दूतों को बुलाया गया है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? परमेश्वर की दूत कौन है? ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଙ୍କର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ। अरे ये 7 तारा को समझाती है, और ये 7 तारा कहने से कलीसिया का दूत है, और ये कलीसिया का दूत कहने से परमेश्वर की दास दासी को समझाती है। ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବେ? परमेश्वर की दास लोगों ने कहाँ पर रहेंगे? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। निश्चित ही वो कलीसिया में रहेंगे। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ? उस कलीसिया को क्या कहा जाता है प्रकाशित वचन के जरिए? ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। और उन्हीं लोगों को दीपट कहा जाता है। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାହାର 2 ପର୍ବର 5 ପଦ ସସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ପଢିଦେବେ। प्रकाशित 2 अध्याय उसका 5 आयत। ଏକ ଏଣୁ ଜାନୁଆରୀ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। हिंदी में पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीपट को उसके साथ से हटा दूं। ए ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଉ ଯଦି ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଦୀପକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦବୁ। और यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहे कि तुम मन फिराओ, अगर मन ना फिराओगे तो तुम्हारे पास जो दीपट है उसे अपने जगह से हम हटा देंगे। ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ ଯାହା ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। और ये दीपट कहने से कलीसिया को समझाती है। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने 7 कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ତାହା ସପ୍ତ ବା ସାତ ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। जिस वचन परमेश्वर की ओर से दिया जा रहा है, ये 7 कलीसिया है। ଏଇ ସାତ ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି କାହାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆପଣା ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟନ୍ତି। और ये 7 कलीसिया में किसको लेके परमेश्वर ने कार्य करेंगे? अपने दास दासी को लेके निश्चित ही वो कार्य करेंगे। और ये दास दासी कौन है? जो 7 तारे हैं। ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ବିଷୟ ଉଠୁଅଛି। परमेश्वर की पवित्र वचन जो प्रकाशित में देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि दीपट को उसके स्थान से हटा दिया जाएगा।
आश्चर्यर विषय मो प्रिय माने सेमानकर मन को परिवर्तन करबा पई प्रभु जणांती आउ जदि सेमाने जदि मन को परिवर्तन करू नाहंती ताहेले निश्चित भाबरे सेमान को कोन करा जाय सेमानको स्थानरु मंडली को उठेबा विषय कुहा जाय। और आश्चर्य के विषय ये है मेरे प्रियो, उन्हीं लोगों को मन फिराने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो लोग मन ना फिराए तो निश्चित ही उन्हीं लोगों को हटा दिया जाएगा, अर्थात कलीसिया को उठा लिया जाएगा। एही विषय को साधारण भाबरे बुझिबा पई और इस विषय को साधारण तरह से समझने के लिए आमे जदि एको दृष्टांत देखिबा जहां माथ्यू तार 21 पर्वर 33 पदरु आरंभ होउची। हम एक दृष्टांत को देखें, मत्ती लिखित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 33 आयत से शुरू हो रहा है। ए जगारे जणे गृहकर्ता थिले और यहाँ पर एक मालिक थे, एक स्वामी थे। आउ जेउ गृहकर्ता आपण चतुर्पार्श्वरे एको द्राक्षा कुंड को खोलिले और जो मालिक ने अपनी चारों तरफ एक दाखवारी लगाए या दाख कुंड उन्होंने खोदा। से बहुत भलो भाबरे से कोन कले ना द्राक्षा क्षेत्र को आउ बाउंड्री मध्ये तयारी कले और उन्होंने अच्छी तरह से वो दाखवारी को अच्छी तरह से बाउंड्री बनाए। पुणी केते जनकु से दायित्व देकी से विदेश को पळेले और उन्होंने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दिया और उन्होंने विदेश चले गए। जेउ समय से द्राक्षा कुंड बा जागा बा चाष करिबा जागारु फल उत्पन्न हेबो और जिस समय उस दाखवारी से फल उत्पन्न होगा आउ सेई समय और उसी वक्त द्राक्षा माने फल को बा चाष फल को पाइबा पई कृषक मानकु पाखकु निज दास मानकु पठेले और स्वामी ने अपने दासों को उस दाखवारी के लिए दाखवारी को जिम्मेदार जिनके ऊपर दिए थे उन्हीं लोगों के पास दाख फल को प्राप्त करने के लिए अपने दासों को स्वामी ने भेजा। सेई कृषक मानकु निकटकु पठेले और वही किसान लोगों के पास ये स्वामी ने भेजा। से कृषक माने जणे तांकर पठेथिबा दासंकु कोन करूछंती पत्थर मारुछंती बा हत्या करूछंती। अरे किसान लोगों ने क्या कह रहे, स्वामी जो दास लोगों को भेजा है उन्हीं लोगों को पथरावा करके मार डाल रहे हैं। पुणी थोरे से टिके अधिक लोगों को से पठांती बाद में ये स्वामी ने क्या करे, बहुत सी ज्यादा लोगों को फिर से भेज रहे। तो 33 रु डायरेक्ट पढी दियंतु लोक बुझी पारिबे मु तो बुझाई देबी हेले बुझी बुझी पारिबे। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣ। ଜଣେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କରି ଚାରିଆଡେ ବାଡ଼ ଦେଲେ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡ ଖୋଳି ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଭାଗ ଦେଇ ବିଦେଶକୁ ଗମନ କଲେ। ପରେ ଫଳର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଣକୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବଧ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ପକାଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦାସ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅକୁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟ କରିବେ ଏହା କହି ସେ ପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେହି କୃଷକମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଏଇ ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଆସ ଏହାକୁ ବଧ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାର ଅଧିକାର ହସ୍ତଗତ କରୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ବାହାରେ ପକାଇ ବଧ କଲେ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତା ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବେ ଓ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟର ଫଳ ଜଗାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭାଗରେ ଦେବେ। वर्तमान आमे बुझी पारुछु स्पष्ट भाबरे और हम समझ पाते हैं अच्छी तरह से निजरो चाष करिथिबा फल को पाइबा पई एक व्यक्ति कोन करंती सर्वप्रथमे दुई जन को पठांती ताहा परे किछि अधिक लोकन को पठांती आउ ताहा परे निजरो संतान को पठांती बा निजरो पुओ को पठांती। अरे अपने दाखवारी में से कुछ फल प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ अपने स्वामी ने कुछ दास को भेज रहे हैं, उसके बाद उन्होंने और ज्यादा लोगों को भेज रहे हैं, आखिरी में अपने बच्चों को अपनी संतान को भी भेज रहे हैं। ए तीन प्रकार लोकन को काहाकू मध्य से माने छाड़िले नाही ए तीन प्रकार लोकन को से माने कोन करले हत्या करले। अरे ये तीन तरह के लोगों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, अरे इन तीन ही प्रकार के लोगों को भी उन्होंने मार डाले। परिशेषरे एमानकु दंड देबा पई स्थिर करागला और आखिरी में इन लोगों को दंड देने के लिए स्थिर किया गया। ठीक सही परी जेतेबेले कि 7 गोटी मंडली को प्रभु एक वार्ता लिखंती जणांती मो प्रिय माने आमे जदि देखि पारुछु पिता पुत्र और पवित्र आत्मांकर उपस्थिति मध्यरे जेतेबेले कि परमेश्वर कार्य करंती किछि दासों को पठांती लोक कोन करंती एक्सेप्ट करंती नाही। ठीक जेमिति सेई द्राक्षा क्षेत्रर मालिक पठाइथिले ताहा परे ठीक सेमिति आमे जदि देखुछु आउ किछि लोकन को बढ़े कि परमेश्वर कार्य करांती जो माने कि भविष्यत वक्ता माने थिले
ताहा परे सुधा एई लोक माने ग्रहण करू नाहंती आउ जेउ समय रे निजरो पुत्र प्रभु यीशु को से पठांती आउ लोक माने कोन करूछंती हत्या करूछंती ए हत्या परे एक समय आसुछि जेउ समय एक विचार रो समय विचार समय मध्यरे आउ एक समय आसुछि जेउ समय एक अनुग्रह रो समय अनुग्रह रो समय परे जेउ समय आसीबो प्रभु मंडली को उठाइबे मेघमालारे नेकी जिबे ताहापरे जो समय आसीबो महाक्लेशर समय आसीबो तार अर्थ समय सन्निकट ट्रांसलेट करि पारबे सिस्टर हाँ सर, हाँ। हाँ और इसके बाद एक बादल में प्रभु आने वाले हैं, जो आने वाले का जो समय है ये है कि समय निकट आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं जैसे कि तीनों टाइप के व्यक्ति को एक उदाहरण के ओर पे हम लोग नया नियम में मत्ती पुस्तक में पढ़े आमने देखि गलु तीन प्रकार लोकों को विषय रे जहा कि आमने माथ्यू पुस्तक रे अध्ययन मध्य करि जाई अछु। ठीक उसी तरह ही परमेश्वर ने पहले अपने दास को भेजे ठीक सही प्रकार परमेश्वर तांकरी दासों को प्रेरण करि अछंती। उसके बाद भविष्य वक्ता लोगों को भेजे एहा परे से भविष्यत वक्ता मान को प्रेरण करि अछंती। और उसके बाद स्वयं अपने बेटे को भेजते हैं और एहा परे से निजर संतान को से निजर पुत्र को प्रेरण करू अछंती। लेकिन दुख की बात यह है जैसे वो तीनों व्यक्ति को लोगों ने मारे ठीक उसी तरह इस धरती पर भी परमेश्वर के विरुद्ध में ये तीनों टाइप के लोगों में यानी लोगों ने इंसान ने इन तीनों को हत्या करते हैं आज के दिन में भी दुखर विषय एहा अटे मो प्रिय माने माने देखुछु एही तीन प्रकार लोक जे 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 जो प्रकार की माने थिले आ एही तीन प्रकार लोक मानकु मध्य हत्या करा जाउछि। आ माने देखुथलु एही माथ्यू पुस्तक रे एठारे मध्य एही तीन प्रकार व्यक्ति मानकु हत्या करा जाउछि। और इसीलिए इस जो रेवलेशन के चैप्टर में लिखा गया और मैं अपना दीप को उठाऊंगा और जो कि अगर तुम लोग अपना मन को परिवर्तन नहीं करोगे ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଦୀପକୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମମାନେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା। अब आश्चर्य की बात यह है इसमें सवाल उठता है परमेश्वर ने इस जो कि उजियाला व दीप इसका मतलब जो कलस्या है उसको उठाने की बात क्यों कहे ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରଦୀପକୁ ହଟେଇ ଦେବାର ବିଷୟ କାହିଁକି କହନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜବଳ ଅଟେ ଗୋଟେ ଉଜିଆଲାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ ଆଉ ଏଇ ବିଷୟକୁ ସେ ହଟେଇବାକୁ କାହିଁକି କହନ୍ତି और जो कि एक कलस्या है ଯାହାକି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ ଗୋଟେ କଲିସିଆ ଅଟେ। हम लोग सीधे और पर सुने ଆମମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଗଲୁ जो कि प्रकाशित वाक्य 2 उसका 5 आयत में हम लोग ये देखते हैं इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा ଆଉ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ପ୍ରକାଶିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର ନହିଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ये जो दीवट यानी दीप है इसका मतलब एक कलश है ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ କଲିସିଆ ଏହା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବୁଝାଯାଏ। अब इसमें हम लोग को ध्यान करने की आवश्यकता है परमेश्वर ने ये क्यों कहा मैं अपना अगर मन को नहीं फिराते हो तो फिर मैं अपना कलश को उठाऊंगा ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ କି ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ଥାନରୁ ଆମମାନେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। इसीलिए पहले वचन में हम लोग जो रेवलेशन के चैप्टर शुरू हुआ पहले हम लोग सुने कलस्या क्या है और दूसरी बात हम लोग इस विषय को सुने चैप्टर 2 में परमेश्वर कलस्या को उठाएंगे लेकिन वहां पर यह सवाल हुआ था यह सवाल उठा था कलस्या में और आगमन में क्या फर्क है ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷ ଶୁଣିଗଲୁ କି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ ଆମମାନେ ଶୁଣିଗଲୁ ଆଉ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳକୁ ଉଠେଇ ନେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ସେ କାହିଁକି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି କି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ଆମମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ।
आगमन आ मंडली रे उठेबा विषय पार्थक्य कोन ताहा प्रश्न उठिथिला आ सही विषय को आमे वर्तमान आजि आमे उत्तर पाउछु। और आगमन और कलीसिया को उठाए जाने के विषय में जो सवाल उठा था उसका उत्तर अभी हम प्राप्त कर रहे हैं। कारण आगमन पुणी मंडली को उठेबा एहा एक भिन्न विषय अटे। क्योंकि परमेश्वर का आगमन और कलीसिया को उठाया जाने का विषय ये अलग प्रकार का विषय है। प्रभु यीशु की आगमन और कलीसिया को उठाना अलग अलग विषय है। प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन और मंडली को उठेଇବା विषय यह अलग अलग प्रकार विषय अटे। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कलीसिया को उठाने के जो बातें हैं और जो 7 कलीसिया है उसमें से पहली और जो कि इफिसुस का पुस्तक है और उसके अंदर ही इफिसुस का कलीसिया में प्रभु ये संदेश देते हैं ना वो कलीसिया को उठा के ले जाएंगे। ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠାଇ ଯିବା ବିଷୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି। और इस इफिसुस का जो कलीसिया में आश्चर्य की बात थी वो कलीसिया को इसलिए उठाएंगे, वो कहते हैं मैं उठा के ले जाऊंगा तब जबकि तुम मन को ना फिराओ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଏହି କଲିସିୟାକୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଦୀପକୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। और रीजन क्या था? ଏହାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? कलस्या को उठाने का रीजन एकमात्र विषय हम लोग इस कलाम पर देख सकते हैं और वो सीधे और से जो कि मन को अगर नहीं फिराते हैं तो फिर वो कलस्या को उठाएंगे। ଆଉ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠାଇ ନେବାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଅଛି। ଆମମାନେ ସିଧାସଳଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। मन नहीं फिराने का मतलब कलस्या को उठाने का मतलब ये है कि प्रभु सीधे ओर से ये संदेश देते हैं मैं अपना कलस्या को उठाऊंगा और उसके बाद कुछ श्राप यानी महाक्लेश का समय को मैं भजने के लिए तैयार हूं। ଆଉ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠେଇବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଅଟେ। ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କହନ୍ତି କି ସେ ଏହି ତାଙ୍କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକୁ ସେ ଉଠେଇ ନେବେ ଏହା ପରେ ସେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଆଉ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି जो मंडली को प्रभु उठाइबे आ मंडली को प्रभु केउ समय रे उठाइबा विषय कहउछंती जेउ समय अनुग्रहर समय आसीछि। मन रखंतु अनुग्रहर समय मध्य रे प्रभु मंडली को उठाइबा विषय कहउछंती। अरे ये कलीसिया को उठाने के बारे में परमेश्वर ने कह रहे हैं। और ये कौन सा समय में कह रहे हैं? ये निश्चित ही एक अनुग्रह के समय में कह रहे हैं और ये समय है जो अनुग्रह का समय है। वर्तमान आमे चिंता करिबा जे मंडली को उठाइला परे एक मंडली रहुछि ना रहु नाही। और हम देखिए कि हम सोचे कि कलीसिया को उठाए जाने के बाद कलीसिया रहता है कि नहीं। मंडली को उठेला परे मध्य सेई मंडली रहिबो एहार अर्थ प्रभु आपना मंडली को उठौछंती आ जहा जागतिक मंडली अटे ताहा ए पृथ्वी रे रहिबो। और कलीसिया को उठा कर ले जाने के बाद भी एक कलीसिया रहेगा अर्थात परमेश्वर अपने कलीसिया को उठा कर ले जाएंगे और जो सांसारिक कलीसिया है ये यहाँ पर रह जाएगा। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦୀପକୁ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଆଉ ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ ଲାଇଟିଂ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରଦୀପକୁ କାଢିଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। और ये मंदिर कहने से परमेश्वर ने कह रहे कि ये दीपट को अपनी जगह से हटा देंगे और ये दीपट कहने से एक ज्योति है एक उजियाला है। ଆଉ ଏହା କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଏ? और ये कौन सा कलीसिया को कहा जा रहा है? ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3 ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ରହିଅଛି। जिस कलीसिया में 3 प्रकार का क्वालिटीज 3 प्रकार का गुण रहता है। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟି कोन अटे? और पहला गुण क्या है? एफिसियो मंडली प्रति वार्ता जहा कि एफिसियो 2 पर्वर 2 पद आम्भे तुमरो कर्म परिश्रम धैर्य जानो पुणी तुम्भे जे दुष्ट मानकर क्रिया सही न पार आ जो माने आपना आपना को प्रेरित बोली कहंती किंतु प्रकृत रे प्रेरित नुहंती से मानको परीक्षा करी मिथ्यावादी बोली चिन्हि अछ। अर्थात प्रथम क्वालिटी एहा अटे एफिसियो मंडली रो लोक सर्वप्रथमे भंड को चिन्हि पारुछंती। मेरे प्रियो इन सारे विषयों को हम प्रकाशित 2 अध्याय इसका 2 आयत के अनुसार हम देख पाते हैं कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और ये भी कि तू
सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं वर ये है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तो प्रथम क्वालिटी आमे कोन देखुछु एफिसियो मंडलीर लोक भंड को चिन्हुछंती। और पहला क्वालिटीज, पहला गुण हम क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो? एफिसिया कलीसिया झूठे लोगों को अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। भंड लोक को चिन्हिबा माने मंद आत्मा को स्पष्ट भाବରେ चिन्हि पारिबा। और झूठे लोगों को पहचानना अर्थात बुरे लोगों, बुरे आत्मा को अच्छी तरह से पहचानना। मंद आत्मा को एक व्यक्ति केतेबेले चिन्हि पारिबो? दुष्ट आत्मा को एक व्यक्ति कब पहचान पाएगा? भंड व्यक्ति को केतेबेले गोटे व्यक्ति चिन्हि पारिबो? झूठी व्यक्ति को एक व्यक्ति कब पहचान पाएगा? भंड व्यक्ति को चिन्हिबा पाई प्रभु जीशुंकर उदाहरण आ शिक्षा अनुसार गोटे गछरे जदि फल नथिबो ताहेले से स्पष्ट भाବରେ भंड अटे, किंतु गोटे गछरे जदि फल अटे ताहेले से उत्तम व्यक्ति अटे। आ फल को देखिबा पाई फल को फल रहिबा आवश्यक। एहार अर्थ होउछि एफिसियो मंडलीर एही लोकमानक निकटरे यथेष्ट भाବରେ अनुभव रहिथिला प्रकृतरे केउ आत्मा केउ लोकंक हृदय रे कार्य करूअछि। अरे ये झूठे लोगों को पहचानने का मतलब ये है, निश्चित ही एक व्यक्ति के अंदर फल दिखेगी, अर्थात एक पेड़ में जिस तरह फल लगा हुआ रहता है ठीक उसी तरह उनके अंदर भी कुछ फल दिखेगी। और ये एफिसिया कलीसिया इस तरह थे, परमेश्वर के अनुग्रह में एक झूठे व्यक्ति को अच्छी तरह से पहचान पाते थे। तो ए जगह रे हम स्पष्ट भाବରେ देखुछु आंकर क्वालिटी होउछि ए माने एक भंड को चिन्हि पारुछंती। और इस जगह पर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि इन लोगों की एक जो अच्छे गुण है कि वो एक और व्यक्ति को वो पहचान पा रहे हैं। जोहनंक कहिबा अनुसार जहाँ प्रथम जोहन तार 4 पर्वर 1 पदरे आमे देखि पारुछु जे तुमे प्रत्येक आत्मा को विश्वास करो नाही। और यूहन्ना के कहने के अनुसार उनके चार अध्याय में हम लोग देख पा रहे थे कि हर आत्मा को तुम पहचानो। तो ए जगह रे आजी लोक झुंटी पड़ती, मंद आत्मा पाखरे मध्य लोक जाती, प्रोफेसी बाया मध्य हुंती, जो लोक पाप करे से लोकंकर शरणागत मध्य हुंती। माने कहिबार अर्थ हैला एहा परे मध्य लोक जदि झुंटंती ताहेले एफिसियो मंडलीर लोकंकु केते शक्ति आ सामर्थ नथिला जहा कि सेमाने भंड लोक मानको चिनिबा पाई सेमानकर प्रथम क्वालिटी थिला आ एहा प्रकाशित वाक्य रे कुहा जाय। और यहाँ पर झूठे लोगों को पहचानने के लिए जो कि एफिसियों की कलीसिया के पास वो और सामर्थ थी कि यहाँ पर इसलिए उसी बात को उनके इस गुण के बारे में कहा गया है जहा कि स्पष्ट भाव जदि आमे देखिबा प्रथम जोहन तार 4 पर्वर 2 पदरे कुहा जाय। और जो कि हम साफ तौर पर देखेंगे जो कि पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में कहा गया है, तुमे माने ईश्वर को आत्मा को चिन्हि पारिबो जीसु ख्रीष्ट जे देहवंत होई आसी अछंती एहा जे कोनोसी आत्मा स्वीकार करे से ईश्वर को ठारू आगत बा आसी अछि। कहते सर प्रथम जोहन 4 पर्वर 2 पद। पहला यूहन्ना 4 के 2 में हम लोग देखते हैं कि यहां पर ऐसा लिखा गया, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। आउ जे कोनोसी आत्मा आउ जीसु को स्वीकार न करे ताहेले ताहा एको ख्रिस्तानी बा भंड अटे। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यही मसीह के विरोधी की आत्मा है। जीसु को स्वीकार करिवार अर्थ कोन? यीशु को ग्रहण करने का अर्थ क्या है? जीसु को स्वीकार करिवार अर्थ होछि पवित्र जीवन काटिबा। यीशु मसीह को स्वीकार करने का अर्थ है पवित्र जीवन बिताना। दिने शैतान आसी प्रश्न पचारे, एक दिन शैतान आकर ये सवाल पूछता है। दिने शैतान आसी प्रभु जीसु को सीधा सड़क कहे, एक दिन शैतान आकर प्रभु यीशु मसीह को सीधे सीधे बोलता है, तुम्हें जदि ईश्वर को पुत्र हटो ताहेले पत्थर को रोटी करो। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर को रोटी में बदल दो। किंतु प्रभु कौन कहते? लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मनुष्य माने तांकर संतान माने केवल रोटी रे बंचिबे नहीं, और मनुष्य और उनके संतान कभी भी रोटी से ही नहीं जिएंगे, ईश्वर को वाक्य रे बंचिबे। परंतु परमेश्वर के वचन से जिएंगे। जो माने भंड माने से माने काहे रे बंचिबे? और जो लोग झूठे हैं वो किससे जीवित रहेंगे? जागतिक इच्छा रे बंचिबे और सांसारिक अभिलाषा से जिएंगे। एथि पई से माने भंड बा भ्रष्ट होउछंती, और इसीलिए वो लोग झूठे और भ्रष्ट होते हैं। प्रभु यीशु शैतान को कहिबा अनुसार जहा कि वाक्य आमे माथ्यू तार 4 रे देखि पारिबा जे स्पष्ट भाव से कहंती मोहर संतान माने मोहर वाक्य रे बंचिबे।
और अगर हम लोग मत्ती उसके 4 अध्याय में देखेंगे कि यीशु मसीह शैतान को जवाब देते हैं कि मेरे बच्चे मेरे संतान ना सिर्फ और रोटी से जिएंगे। ठीक सही परी जहन मध्य कहती ए जगार जो माने आउ ख्रीष्टानी नुहंती भंड नुहंती से माने प्रभु यीशु को विश्वास करिवे आउ से जे देहबंत होई आसी अछंती और जो सच्चे मसीह हैं, जो वो लोग विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह वो एक देहधारी होकर आया है, उसको विश्वास करेंगे। एमानकु चिनिबारो क्वालिटी एफिसियो मंडलीर लोकंकु थिला और इन लोगों को पहचानने की जो गुण है वो इफिसियों की कलीसिया के पास था। द्वितीय क्वालिटी कौन थिला और दूसरा गुण कौन सा था? कोरिन्थियो पुस्तक द्वितीय कोरिन्थियो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 11 पर्व टिके आमे खोलिबा 11 अध्याय हम थोड़ा खोलेंगे, जहां अति सुंदर भावरे मानकर क्वालिटी विषय कहा जाए और जो कि बहुत ही अच्छी तरह से उनके अच्छे गुणों के बारे में कहा गया है। 11 पर्वर और उसके 11वें अध्याय का टिके समय नेबा पई चाहे थोड़ा समय मैं ले रहा हूं। 13 पद टिके पढ़ंतु सुस्मिता भौणी। କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଓ ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଣ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ମହାକ୍ଲେଶର सहभागिता ହେବେ ଏଇ ବିଷୟକୁ କହନ୍ତି। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो और झूठे प्रतीति करने प्रेरित लोग हैं वो किस तरह से और करेंगे उसके बारे में कहा गया है। द्वितीय विषय से कहती और दूसरा विषय कह रहे हैं प्रभुଙ୍କର आत्माଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲା ପରେ ପରିଚୟ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଆମେ 11 पर्व ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ बुझी परिबा। और प्रभु की आत्मा को पाने के बाद हम के पास कैसे समर्पित होंगे इस बारे में हम 11 पद से लेकर हम अगर पढ़े तो जान पाएंगे। अर्थात द्वितीय कोरिन्थियो तार 11 पर्वरे स्पष्ट भावरे ईश्वरଙ୍କ वाक्य बा प्रभु यीशुଙ୍କ ଠାରେ केमिति रहिबा जेपरि आमे भ्रष्ट बा भंड हेबा नै ए विषय को प्रेरित पाउल गुरुत्व विषय दियंती। और हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पर अगर हम देखें कि दूसरा कोरिन्थियो 11वें अध्याय में तो फिर साफ तौर पर प्रेरित पौलुस हम लोगों को समझा रहे हैं। यही विषय प्रकाशित वाक्य एफिसियो मंडली को जहा कि प्रभु कहती प्रथम विषय से कहलो तुम्हें जे दुष्ट मानकर क्रिया सह्य करि न पारो या कहले 2 पदरे 3 पदरे से कहले पुणी धैर्य धरी आंब नाम सकाशे तुम्हें कष्ट सह्यछ ओ क्लांत होई ना हो जहा कि प्रकाशित वाक्य 2 रो 3 रे कुआगला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसके 2 के 3 में हम लोग अगर देखें यहाँ पर लिखा गया है कि और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हमें द्वितीय कोरिन्थियो 11 पर्व हमें कहीं की पाठ करलु हमने दूसरा कोरिन्थियो 11 पर्व हमने क्यों पढ़े? प्रभु यीशुଙ୍କ ଠାରେ केमिति रहिबा ताहा हमें पाठ करलु किबा आपण घर जाई पढिले। प्रभु यीशु के पास हम कैसे रहेंगे इस बारे में हमने पढ़ा, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ताहारो अर्थ एफिसियो मंडलीर द्वितीय क्वालिटी थिला से माने आउ कष्ट सह्य करुथिले से माने धैर्य धरुथिले जहा कि प्रभु यीशुଙ୍କ ଠାରେ बा रहिबा पई ए विषय को द्वितीय बा सेकंड क्वालिटी आकार रे हमें देखि पारुछु। और उनका जो दूसरा अच्छा गुण था वो था कि वो लोग दुख उठाते थे और धीरज रखकर परमेश्वर से वो लगे रहते थे। तृतीय क्वालिटी एमान को विषय रे हमें जानिबा पई और तीसरा जो अच्छा गुण है हम लोगों को समझने के लिए जोहनो तारो 15 पर्वर 21 पद टिके पढ़िबे और यूहन्ना 15 और उसका 21 हम लोग पढ़ेंगे। किंतु ସେମାନେ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସମସ୍ତ କରିବେ। केउ सब विषय करिवे कौन से सारा विषय करेंगे? 18 रु जदि पढ़िबा ताहेले विश्वासी को घृणा करिबा विषय कहा जाए। अगर 18 से हम पढ़े तो यहाँ पर विश्वासियों को घृणा करने के बारे में कहा जाता है। माने जागतिक कष्ट जागतिक पेन को माने सहय करूछंती एमानकर थर्ड क्वालिटी। और संसार का जो तकलीफ है जो दर्द है इन लोगों की तीसरी जो क्वालिटी है कि वो उसको सहन कर लेते हैं। एफिसियो मंडलीर प्रथम क्वालिटी हला भंड को चिनिबा। एफिसियो कलीसिया की पहला गुण है कि वो झूठे को पहचान लेते हैं। द्वितीय क्वालिटी हला प्रभु यीशुଙ୍କ ଠାରେ रहिबा। और दूसरा जो गुण है जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास रहना। तृतीय क्वालिटी होची जागतिक कष्ट को निज जीवन रे सहय करिबा।
और तीसरा है कि संसार की जो दुख तकलीफ है उसको भी सह लेना। ताहा परे प्रभु एमानको प्रति एको विषय कहंती उसके बाद प्रभु खुद इनके प्रति एक बात कहते हैं, जहा एफिसियो प्रकाशित वाक्य 2 पर्वर 5 पद। और जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय के 5वें आयत में लिखा गया है। एणु केउठारे तुमर मन पतन होइअछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन कर ओ आद्य कर्म सब कर, नहेले जेबे मन परिवर्तन न कर तेबे आम्बे तुम निकटकू आसी तुमर प्रदीपकू स्वस्थानरु घुंचाई देबु। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके साथ से उसके स्थान से हटा दूंगा। आश्चर्यर विषय मो प्रिय माने, बड़ी ही आश्चर्य की बात है मेरे प्रियो। सब प्रकार कष्ट सह्य कला परे मध्य प्रभु एमानकर मन परिवर्तन करिबा पई काहेकि कहिले? हर एक प्रकार के दुख तकलीफ को सहने के बावजूद भी परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम लोग अपने मन को फिराओ? काहेकि सेमानको ठारू सेई मंडली को घेनी जीवा विषय कहिले? क्यों उन लोगों से वो कलीसिया को दूर हटा देने की बात क्यों कहे? एमानको ठारे एमिति कोन पाप रहिला? इनके पास ऐसा कौन सा पाप रह गया था? आमे जदि उदाहरण आकार जदि नूतन नियम को चली जीवा, अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर नए नियम में चले जाए, सेदिन सेई धनी युवा व्यक्ति प्रश्न पचारे आ प्रकृत रे स्वर्ग राज्य को जीवा पई कोन करिबा को हबो? और उस दिन वो अमीर युवक पूछता है कि हमें स्वर्ग का राज्य जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निश्चित भावरे प्रभु ताकू सब विषय कहंती आ से सब विषय पालन करिबा विषय युवा व्यक्ति सीधा सड़क भावरे कथा कहंती। और निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह उसको सारी विषय कहते हैं, जो सारी विषय पालन करने के लिए, और वो उसको मानता है। ताहा परे और उसके बाद ताहारो दुर्बलता को प्रभु देखंती, और उसके कमजोरी को प्रभु देखते हैं। ताहारो दुर्बलता कौन थिला? और उसकी कमजोरी क्या थी? ताहारो दुर्बलता थिला से अपना संपत्ति को अति प्रेम करुतिला। और उसकी कमजोरी ये थी कि वो अपनी दौलत को सबसे ज्यादा प्यार करता था। सेइथिपाई संपत्ति को बिक्री करी दरिद्र मानकू बांटिबा विषय प्रभु यीशु कहिले। और इसलिए और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपने सारी जायदाद को तुम बेचकर और सारे जायदाद को तुम गरीबों में बांट दो। प्रभु दुर्बलता को देखंती, प्रभु कमजोरी को देखते हैं। 99% भलो थिले सुधा जदि गोटे दुर्बलता अछि से दुर्बलता को प्रभु स्वच्छ करिबा पई देखिबे। और 99% आप चाहे अच्छे हो, लेकिन एक विषय जो आपका दुर्बलता रह जाता है उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर जरूर कोशिश करते हैं। या क्यों दुर्बलता अछि जे विषय की प्रभु कहंती कि तुम बे आपना आद्य प्रेम को तुमे कोन करियछो भूली जाइयछो। और ऐसे कौन सी दुर्बलता है जो कि प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अपने पहले प्रेम को तुम भूल चुके हो? एइथिपाई मन परिवर्तन करो, केउ जगारे तुमरो पतन होइअछि ता खोजी बाहर करो, नहेले आम्बे आपना प्रतिपकु स्वस्थानरु घुंचाई देबु। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, और अब पहले के समान काम कर, और यदि तू ना मन फिरा नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मो प्रिय माने, मेरे प्रियो, प्रभु ए जगारे प्रेम करिबा विषय कहिले। प्रभु इस जगह पर प्रेम करने के बारे में बोले। दुई प्रकार लोक प्रेम करंती नाही। 2 प्रकार के लोग जो कि प्रेम नहीं करते हैं। प्रथम होछि कपटी और द्वितीय होछि गर्भी। और पहला है कपटी और दूसरा है घमंडी। गर्भी केबे भी प्रेम करे नाही। एक घमंडी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता। ता पाखरे पैसा अछि से गर्भ करे, उसके पास पैसा है इसलिए वो घमंड करता है। ज्ञान अछि गर्भ करे, उसके पास ज्ञान है इसलिए वो घमंड करता है। बुद्धि अछि घमंड करे, और उसके पास बुद्धि है इसलिए वो घमंड करता है। एफिसियो मंडली रो लोक पाखरे कोन थिला माने घमंड हे गले। एफिसियो की कलीसिया के पास ऐसा क्या था जो कि वो जिस विषय में कि वो घमंडी थे? एमानको पाखरे आत्मा को चिन्हिबा वरदान थिला, एथिपाई एमाने घमंडी हे गले। और इन लोगों के पास जो कि आत्मा को पहचानने का वरदान था, इसी वजह से वे लोग घमंडी हो गए। जागतिक कष्ट को सह्य कला परे मध्ये एमानको ठारू गर्भ गला नाही। सांसारिक दुख तकलीफ उठाने के बावजूद भी इनके मन से वो घमंड नहीं गया। ए माने अन्य को तुच्छ करिबा को लागिले। और ये लोग दूसरों को तुच्छ जानने लगे। आज अनेक लोक निजे दान पाइला परे निजको महान बोली मने करंती। और बहुत सारे लोग वरदान को पाने के बाद अपने आप को महान समझने लगते हैं। एइथिपाई एही महानता केवल प्रभुकर अधिकार रही अछि, आउ एही महानता को जदि आमे निज आड़ को जदि आणु ताहेले गर्भ उत्पन्न हेइ थाए। और ये महानता के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, और उस महानता को अगर हम अपनी ओर ले आए तो फिर उसको घमंड कहते हैं।
ଏହି ଗର୍ବ ଯାହାକି ପ୍ରେମକୁ ଦୂର କରେ। और यही घमंड जो कि प्रेम को दूर करता है, ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ये पहला विषय है। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? और दूसरा विषय क्या है? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। प्रभु ने कहा कि तुम अपने पहले प्रेम को त्याग चुके हो। କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟ କହିଲେ? किसे प्रेम करने के बारे में बोले? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟ କହିଲେ। परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में बोले। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं ତାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି, और उसके दुख सुख के बारे में आप समझते हैं, ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ ଯୋଗାନ୍ତି, उसकी जरूरत को आप पूरा करते हैं ତା ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, और उसके बारे में जानने के लिए उससे आप बार बार बात करते हैं, ଏହି ଲୋକମାନେ ଭଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ହେବା ଭୁଲିଗଲେ। और ये लोग झूठे लोगों को पहचानने के और साथ ही वे लोग क्या किए कि परमेश्वर से बात करना भूल गए। ଭୁଲିଯିବାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ କମେଇ ଦେଲେ। और भूल जाने का अर्थ है कि ये लोग उसको घटा दिए, उस मात्रा को। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭୀ ଆତ୍ମା କାମ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପଳେଇ ଆସେ। और जब घमंड की आत्मा काम करती है तो प्रभु का जो महानता है वो अपने खुद के अंदर आ जाता है। ଏଫିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖୁଛୁ। एफिसियों की कलीसिया में हम 3 प्रकार के गुण को देखते हैं। ତାହା ଭଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିବା ବିଷୟ ହଉ କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବା ବିଷୟ ହଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ପାଇବା ବିଷୟ ବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ବି ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଗର୍ଭୀ ହେବ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। और एफिसियों की कलीसिया में और अच्छे गुण 3 गुण थे, लेकिन प्रभु फिर भी उसके बावजूद भी प्रभु कहते हैं कि तुम अगर मन ना फिराओ तो फिर हम ये दीवट को तुम्हारे निकट से हटा देंगे। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, पहला विषय, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯଦି ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆସିବ। अगर कलीसिया को हटा दिया जाएगा तो फिर महाक्लेश का समय आएगा। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, दूसरा विषय, ଆଜିର ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ତାହେଲେ କେଉଁ ସମୟରେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ? और अगर आज के समय में, आज के दौर में अगर कलीसिया को हटा दिया जाए तो किस दौर पर, किस समय पर हटाया जाएगा? ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯିବ, ମେଘମାଳାରେ ନିଆଯିବ। अनुग्रह के समय समाप्त होने से पहले और उसको कलीसिया को जो कि आकाश में उठा लिया जाएगा। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, तीसरा विषय, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଉଠାଇବା ବିଷୟ କହିଲେ अगर परमेश्वर ने कलीसिया को इस जगह पर उठाने के बारे में कहे ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ନେଇକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ? और वास्तव में अगर वो उठाने का बात कर रहे हैं तो वो अगर उसको उठाएंगे या फिर उसको ले जाकर दूसरे स्थान पर रखेंगे। ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାହାନ୍ତିଆରେ ଶୁଣିବା। और इस 3 विषय को हम कल और हम सुबह की आराधना में सुनेंगे। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करे।